ಪ್ರಿಯವಾದ ದೇವರ ಜನರೇ, ಈ ದಿನದ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಸಿ ನಾವು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಇಡೋಣ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಪರಮ ಗುರುವೇ, ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನೇ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಮ್ಮ ದೇವರೇ, ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆ ನೀನು ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಕರ್ತನೆ, ಈಗ ನಾವು ನಿನ್ನ ಚರಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಸಿರುವಾಗ ಯೆಹೋವನೇ, ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೋ. ಮಾತುಗಳದೆ ಆತನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ನಾಮದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇರಿಸು. ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಕ್ರಿಸ್ತನೇ, ನೀನೇ ಈ ಆರಾಧನೆ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಘನತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೋ. ಮಾತುಗಳದೆ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನು ನಡೆಸು. ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯೇಸುವಿನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್. ಪ್ರಿಯವಾದ ದೇವರ ಜನರೇ, ಈ ದಿನ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಾಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಾವು ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಆತನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆರಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಾರದೆ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರ. ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಆತನ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಹ ನಮ್ಮಿಂದ ಕಳೆಯಲಾರದೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರಪಡಿಸಲಾರದೆ ಆತನು ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡೋಣ. ಈ ದೇವರ ಚರಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಪಿಸಿರುವಾಗ ನಾವು ಉತ್ತರ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಕ್ಕಾಗಿ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ 78ನೇ ಕೀರ್ತನೆ 1ರಿಂದ 8ನೇ ವಚನವರೆಗೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಕ್ಕಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. हम भजन संहिता में 78 इसका 1 से लेकर 8 पद तक उत्तर प्रत्युत्तर के रूप में पढ़ेंगे. विल रीड Psalm 78 1 to 8 as responsive reading. Responsively we read. ನಾನು ಮೊದಲನೇ ವಚನ ಓದಿದ ನಂತರ 2ನೇ ವಚನ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. As I read the first verse, I would like to request the congregation to follow in the second verse, to read along with me. जैसे मैं पहले वचन पढ़ूंगा, उसके बाद दूसरे वचन में आप मेरे साथ पढ़ते रहें. Psalm 78 1 to 8, भजन संहिता 78 1 से लेकर 8 वचन तक हम पढ़ेंगे. है मेरे लोगों, मेरी शिक्षा सुनो, मेरे वचनों की ओर कान लाओ. मैं अपना मुंह नीति वचन कहने के लिए खोलूँगा. मैं प्राचीन काल की गुप्त बातें कहूँगा, जिन बातों को हमने सुना और जान लिया और हमारे बाप दादाओं ने हमसे वर्णन किया है. उन्हें हम उनकी संतान से गुप्त न रखेंगे, परंतु उन्हार पीढ़ी के लोगों से यहोवा का गुणानुवाद और उसकी सामर्थ्य और आश्चर्य कर्म का वर्णन करेंगे. उसने तो याकूब में एक चितौनी ठहराई और इज़राइल में एक व्यवस्था चलाई, जिसके विषय उसने हमारे पितरों को आज्ञा दी कि तुम इन्हें अपने अपने लड़के बालों को बताना कि आने वाली पीढ़ी से लोग, अर्थात जो लड़के बाले उत्पन्न होने वाले हैं, वे इन्हें जाने और अपने अपने लड़के बालों से इनका बखान करने में उद्यत हो, जिससे वे परमेश्वर का भरोसा रखें और परमेश्वर के बड़े कामों को भूल न जाएं, परंतु उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहें. आखिरी वचन हम साथ पढ़ेंगे. और अपने पितरों के समान ना हो, क्योंकि उस पीढ़ी के लोगों तो हठीले और झगड़ालू थे और उन्होंने
अपना मन स्थिर ना किया था और न उनकी आत्मा परमेश्वर की ओर सच्ची रही. ಪಡೆ हुए वचनों को परमेश्वर आशीषित करे. ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತೆ ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಚರಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಸಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕರ್ತನೇ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಜೀವಿಸುವ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಕರ್ತನೇ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತಾನುಸಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನಗಳನ್ನು ಬಾಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಕರ್ತನೇ ಪೀಡಿತರಾಗಿ ಗತಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಅವರು ವೇದನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ತನೆ, ಆದರೆ ನೀನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ, ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಭದ್ರವಾಗಿ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯ್ದು ಕಾಪಾಡಿ ಈ ದಿನ ತನಕ ನಡೆಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮ ಸಭೆಯ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸು. ನಿನ್ನ ಸುರಕ್ಷಾ ಕವಚವನ್ನು ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಕಾಪಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಕೇಡುಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸು, ಅಂಧಕಾರದ ಬಂಧನಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ಸಮಾಧಾನ, ಪರಲೋಕದ ದೇವರ ಪರಮಾಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಕಳಿಸುತ್ತಾ ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ನೀನೇ ತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನೇ, ಈ ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯವಾದ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಇವರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮುಖದ ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡಿ ಇವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕಷ್ಟ ಆಗಲಾರದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇವರು ಜೀವಿಸುವಂತೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡು. ಇವರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ದೇವದೂತರಿಗೆ ಕಾವಲುಗಾರಾಗಿಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಇವರ ಮನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ದೇವದೂತರು ಕಾವಲುಗಾರಾಗಿದ್ದು ಕರ್ತನೇ, ಎಲ್ಲ ಕೇಡುಗಳಿಂದ ಈ ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯವಾದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಇವರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಸುರಕ್ಷತೆ, ನಿನ್ನ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಬೇಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಂದೆಯಂತ ದೇವರೇ, ಸಭೆಯ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ, ಪ್ರಾಯಸ್ಥರಿಗೆ, ಯೌವನಸ್ಥರಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಕರ್ತನೆ, ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮುಟ್ಟುವಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕರ್ತನೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಿನ್ನ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ತನಕ ಕರ್ತನೆ ನೀನೇ ಈ ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯವಾದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸು, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸು ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬೇಗನೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ನಿನ್ನ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸೇರಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸು. ತಂದೆಯಂತ ದೇವರೇ, ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನದ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ನಿನಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನೇ ಈ ಆರಾಧನೆ ಮುಖಾಂತರ ಘನತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೋ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕರ್ತನೆ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕರ್ತನೆ, ನೀನೇ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಒಬ್ಬರಾದರೂ ನಾಶವಾಗಲಾರದೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿತ್ಯ ಜೀವನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ನಿನ್ನ ಆಶೆ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವಿದೆ. ಕರ್ತನೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಜನರು, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಜನರು ನಿನ್ನ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡು. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಕರ್ತನೆ, ಸೈತಾನು ತನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ದೇವರೇ, ನೀನೇ ಸೈತಾನನಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರದಿಂದಾಗಲಿ, ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅವನಿಗೆ ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟು, ದೇವರೇ ನೀನೇ ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ನಿನ್ನ ಜನರನ್ನು ನಡೆಸು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತೆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ದೇವರ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು
ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್. ಪರಲೋಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪರಲೋಕದ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮ ಪರಿಶುದ್ಧಪಡಲಿ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ಪರಲೋಕ ನೇರ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರ ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಡು. ನಮಗೆ ತಪ್ಪನ್ನು ಶ್ರಮಿಸಂತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ಶ್ರಮಿಸು. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆ ಸೇರಿಸುವಂತೆ ಕೇಡುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪಿಸು. ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜ್ಯವು, ಬಲವು, ಮಹಿಮೆ ಸದಾಕಾಲ ನಿನ್ನವೇ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್. ಪ್ರಿಯವಾದ ದೇವರ ಜನರೇ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಭಾಗ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ 127, 3ರಿಂದ 5ನೇ ವಚನವರೆಗೆ. ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ 127, 3ರಿಂದ 5ನೇ ವಚನವರೆಗೆ. From the Old Testament, the reading is taken from Psalms 127, 3-5. Psalms 127, 3-5 पुराने नियम से लिया हुआ भाग जो आज का पाठ के लिए है. भजन संहिता 127वां अध्याय 3 से लेकर 5 वचन तक. उसके बाद नया नियम का हम पाठ पढ़ेंगे. देखो, लड़के यहोवा के दिए हुए बाग है, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है. जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं. क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसने अपनी तरकश को उनसे भर लिया हो. वो फाटक के पास शत्रुओं से बात करते संकोच न करेगा. परमेश्वर इस वचन को ಆಶೀಷಿತ್ ಕರೆ. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ಮಾರ್ಕನ ಸುವಾರ್ತೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 21ರಿಂದ 24ನೇ ವಚನ ತನಕ, ಅದಾದ ನಂತರ 35ನೇ ವಚನದಿಂದ 43ನೇ ವಚನ ತನಕ. मार्क रचित सुसमाचार नए नियम में हम 21 वचन से लेकर 24 वचन तक पढ़ेंगे. उसी अध्याय में 35 वचन से लेकर 43 वचन तक पढ़ेंगे. We'll read from the New Testament, the Gospel according to Saint Mark, chapter 5, verses 21 to 24, and in the same chapter we will be reading from verse 35 to 43. From verses 35 to 43. I'll be reading it for you all. When Jesus had crossed over again in the boat to other side, a large crowd gathered around him, and so he stayed by the seashore. One of the synagogue officials named Jairus came up, and on seeing him fell at his feet and implored him earnestly, saying, "My little daughter is at the point of death. Please come and lay your hands on her, so that she will get well and live." And he went off with him, and a large crowd was following him and pressing on him. Verse 35 onwards. While he was still speaking, they came from the house of the synagogue official, saying, "Your daughter has died. Why trouble the teacher anymore?" But Jesus, overhearing what was being spoken, said to the synagogue official, "Do not be afraid any longer, only believe." And he allowed no one to accompany him except Peter and James and John, the brother of James. They came to the house of the synagogue official, and he saw a commotion, and people loudly weeping and wailing. And entering in, he said to them, "Why make a commotion and weep? The child has not died, but is asleep." They began laughing at him, but putting them all out, he took along the child's father and mother and his own companions and entered the room where the child was. Taking the child by the hand, he said to her, "Talitha kum," which translated means, "Little girl, I say to you, get up."
Immediately the girl got up and began to walk, for she was 12 years old. And immediately they were completely astounded. And he gave them strict orders that no one should know about this. And he said that something should be given to her to eat. May the good God add his blessings upon the reading of the portion. Amen. ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸಿದ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಸಿ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಆಯಂ ಪ್ರಾರ್ಥನಕರೇ, ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ನಿನ್ನ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಸೇರಿರುವಾಗ ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೋಧಿಸು. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಓದಿದ್ದೀವಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಪಡಿಸು. ಕರ್ತನೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ದಿನ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರೇ ನೀನೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸಂಧಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮುಟ್ಟುವಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳೆಸು. ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯೇಸುವಿನ ಒಂದೇ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. ಪ್ರಿಯವಾದ ದೇವರ ಜನರು, ಈ ದಿನ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ದಿನ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ಫಾದರ್ಸ್ ಡೇ ಅಂತಂದು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಮದರ್ಸ್ ಡೇನೂ ಆಚರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಿನಗಳು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳು, ಇವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ನಾವು ನಡೆದಿದ್ದೇವೆ ಅಥವಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ದಿನ ಫಾದರ್ಸ್ ಡೇನು ಆಚರಿಸುವಾಗ ನನ್ನ ಪ್ರಸಂಗ ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿ ಅಥವಾ ತಂದೆ ದೇವರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅಥವಾ ದೇವರು ಬಯಸುವಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆತನು ಮಾಡಿದ್ದಾದರೆ ಆತನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಂತೋಷ ಅಥವಾ ಪರಲೋಕದ ಸಂತೋಷ ಆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. आज का दिन मैं विशेषकर पिताओं के लिए समर्पित दिन में पिताओं को किस तरह एक जीवन, उनका जीवन किस तरह बिताना है, किस तरह रखना है, उसके बारे में कुछ बातें कहना चाहूँगा, जिसके चलते पिताओं के जीवन के वजह से किस तरह हम परमेश्वर के राज्य को या परमेश्वर के उस असीम प्रेम को हमारे परिवार में हम देख सकते हैं, वो हम जानने की प्रयत्न करेंगे. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ एक व्यक्ति जिसका नाम था याइर. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಓದಿದ್ದೇವೆ. हम कितनी बार इस व्यक्ति के बारे में पढ़े होंगे. इसके बारे में हमें पता है कि ये व्यक्ति कौन था और इसने क्या किया. लेकिन आज फिर एक बार इस विशेष दिन, पिताओं को समर्पित दिन के निमित्त इस व्यक्ति को हम फिर एक बार इसके यीशु के साथ जो बातें हुई है या यीशु के साथ इसकी जो मुलाकात, उसके बारे में हम थोड़ी गहराई से जानने की प्रयत्न करेंगे. देखिए, पहले ये जो व्यक्ति है जायरस, इस व्यक्ति के बारे में हम जानने से पहले मैं कुछ बातें या कुछ सर्वे का रिपोर्ट आपको बताना चाहता हूँ. पहली बात ये कि आज बहुत सारे घरों में पिता, ये व्यक्तिमत्व पिता नहीं है, वो वास्तविकता में नहीं है, या अगर होगा तो वो वहाँ पर नहीं है. मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिता का अस्तित्व, पुरुष रह सकता है, मनुष्य रह सकता है, लेकिन पिता जो जिम्मेदारी या जो परमेश्वर के ओर से दिया हुआ ये वरदान या ये आप टाइटल कह सकते हैं, ऐसा व्यक्ति हम आज घरों में नहीं देखते हैं, ज़्यादातर घरों में नहीं देखते हैं. प्रियो, बहुत सारे पिताएं या बहुत सारे पुरुष बच्चे पैदा तो करते हैं,
लेकिन उनकी जिम्मेदारी उठाने में सक्षम नहीं रहते हैं। वे बस अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण रीति से नहीं निभाते हैं। वे लोग, मैं ये नहीं कहता कि वे लोग बस परिवार या बच्चे पैदा करके वे लोग पूर्ण रीति से हाथ धोते हैं या नहीं, जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता। हर पिता, हर व्यक्ति जो पिता बनता है वो अपनी जिम्मेदारियों को समझता है, निभाने की कोशिश भी करता है। कैसे कोशिश करता है? वो ये देखता है, उसका प्रथम कार्य ये होता है कि किस तरह मैं अपने परिवार का पालन पोषण करूं, किस तरह मैं अपने परिवार को किसी चीज़ की उनको कमी घटी ना हो, किस तरह मैं इन्हें संभालूं। इस चिंता में या इस विषय में वो ज़्यादा सोचते हुए अपने काम की तरफ और आमदनी बढ़ाने की तरफ, या वो अपने समय पूर्ण रीति से अपने कार्यों में लगाए रखता है। वो अपने परिवार के साथ या अपने बच्चों के साथ समय ना बिताते हुए अपने कार्यों में समय बिताता है, अपने कामों में समय बिताता है, जिसकी वजह से हम ये देखते हैं कि बहुत सारे परिवारों में पीड़ाएं, तकलीफ, संकट और परिवार स्थिर ना होना, ये सारी जो दुष्परिणाम है वो देखते हैं, वो हो रहा है। अगर हम देखें कि आज जो क्राइम की संख्या है वो आज बढ़ रही है, और अगर हम देखें तो हम इस तरह कहते हैं कि ये जो क्राइम करने वाले लोग हैं, ये लोग टूटे हुए परिवार से, गरीब परिवार से और अलग अलग परिस्थितियों में जकड़े हुए लोग ये करते हैं। लेकिन एक मनोवैज्ञानिक इस तरह अपना रिपोर्ट देता है, कहता है कि ये जो लोग हैं जो गुनाह करते हैं, ये लोग ज़्यादातर उस घर से आते हैं जहाँ पर पिता नहीं होता है। यदि है तो वो परिवार में उनके परिवार के साथ नहीं रहता। अगर रहता भी है तो पिता की तरह वो अदृश्य रहता है, रह के भी नहीं रहा जैसा। और ऐसे घरों से हम गुनाहों की संख्या देखते हैं। ऐसे घरों से, ऐसे परिवार से गुनहगार बहुत मिलते हैं। प्रियो, आज घर में मनुष्य की आवश्यकता नहीं है, एक पुरुष की आवश्यकता नहीं है। घर में, परिवार में एक पिता की आवश्यकता है। एक पिता का उपस्थिति ज़रूरी है। जैसे हमने ये देखा कि याईर नाम का व्यक्ति, उसके बारे में अगर हम जानें तो वो व्यक्ति बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था, और वो जो वहाँ के लोकल मंदिर या उधर का स्थानीय मंदिर, उस मंदिर का वो अधिकारी था, और साथों साथ वो एक पिता भी था। और जैसे हम देखते हैं कि यीशु मसीह 21 वचन में कि यीशु मसीह उस स्थान पर जब आता है और उसके साथ बहुत सारे लोग रहते हैं जो यीशु मसीह के साथ पीछे चल रहे हैं, और यीशु मसीह कफरनहूम में आता है। और आते साथ ये व्यक्ति के ऊपर हम ध्यान देंगे, याईर के ऊपर, कि ये एक वहाँ का स्थानीय मंदिर का अधिकारी जो बहुत ही प्रचलित व्यक्ति है, और उसका जो स्तर है बहुत ऊंचा है, और ये व्यक्ति वहाँ के लोगों को
या वहाँ के लोग इस व्यक्ति को अच्छी तरह पहचानते हैं, जानते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति का मुख्य काम ये था कि ये आराधनालय, परमेश्वर की मंदिर, आराधनालय, वहाँ पर परमेश्वर की आराधना करवाने के लिए इसके अधिकार में था। इसके अधिकार में पवित्र ग्रंथ, पवित्र शास्त्र इसके अधिकार में था। और ये उस समय ऐसे फिक्स पादरी नहीं रहते। उस समय ये व्यक्ति ये देखता कि यदि कोई रब्बी आए या यदि कोई याजक आए तो उसे निमंत्रण देकर उस आराधनालय में इस लोगों को बुलाकर आराधना करवाता था और वहाँ पर वचन की पाठ करने के लिए वो नियुक्त करता था लोगों को। वैसे वो इस तरह कहिए कि उस समाज के लिए एक बड़ा व्यक्ति था, या उस शहर के लिए या उस इलाके के लिए एक बड़ा व्यक्ति था जिसे लोग बहुत मान सम्मान देते थे। He was a religious leader. He was an elder of the congregation, local congregation. और ये स्थान, ये जो व्यक्ति का स्थान था, ये स्थान बहुत ही अहम स्थान, बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान। इस स्थान में रहने के बाद वो जब परमेश्वर की आराधना के लिए उसी व्यक्ति को बुला था जो अच्छी रीति से परमेश्वर के वचनों का खुलासा कर सके और जो एक अच्छा नाम वाला या अच्छा पद वाला व्यक्ति को ही वो बुलाता या निमंत्रण देता। ऐसे इसमें ये व्यक्ति, इस व्यक्ति का एक परेशानी जो हम सभी को पता है कि उसकी एक बेटी बहुत, पता नहीं कौन सी बीमारी, लेकिन वो मरने के कगार पे थी। शी वॉज अबाउट टू डाई एंड शी वॉज द ओनली डॉटर। वो एक ही बेटी उसे थी और उसकी आंखों की पुतली की समान थी। वो उसे बहुत चाहता था, जैसे हम अपने बच्चों को चाहते हैं, बहुत चाहता था। एक ही बेटी होने की वजह से वो उसे बहुत ज़्यादा चाहता था और वो मरने की स्थिति, 12 साल की बच्ची। सोचिए अगर हम अगर उसकी जगह होते, हमारी स्थिति ऐसे होता तो हम क्या करते। ये बहुत ऊंचा स्थान रहने के बावजूद भी ये इस समय विवश हो गया। इसके पास इसकी बेटी के बचने का उम्मीद शायद नहीं होगा, लेकिन ये यीशु के बारे में सुना। यीशु जब आ रहा था उनके शहर में, यीशु जब वहाँ पर पधारे, तो ये व्यक्ति, अगर हम उस लड़की के दृष्टि से देखें, उसकी बेटी की दृष्टि से देखें जो बाद में चंगाई पाती है, उसकी दृष्टि से देखें तो ये पिता, ये व्यक्ति जो अधिकारी है, वो व्यक्ति शर्म महसूस नहीं किया कि यीशु के पास जाने में, यीशु के पास जाने में वो शर्मिंदगी महसूस नहीं किया। That little girl saw that her father was not ashamed to seek out Jesus. और ये देखते हैं कि इस पिता वो अपनी बेटी के खातिर या अपनी जिम्मेदारी, वो जो परमेश्वर परम प्रधान परमेश्वर ने दिया है, उस जिम्मेदारी को बखूबी से, बहुत सुंदर रीति से निभाने में वो सक्षम था। उसने, देखिए, वो यीशु मसीह के पास जो स्थिति उसमें उसे आई, तो वो यीशु मसीह के पास खुद होकर गया। वो अपनी बीवी को या अपने दूसरे लोगों को नहीं भेजा। आज हम क्या देखते हैं कि आज अगर कोई धार्मिक कार्य रहे या परमेश्वर की आराधना करने में रहे या परमेश्वर के पास प्रार्थनाएं रखने में रहे, तो आज के जो पिता हैं
ज़्यादातर वे लोग आगे नहीं रहते। वे अपनी पत्नियों से कहते हैं, अरे तू आराधना लीड कर, तू प्रार्थना कर, तू बच्चों को चर्च लेकर जा। और इसीलिए आज चर्च में स्त्रियों की, महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। आज पुरुष, आज जो पिता है वो अपनी जिम्मेदारी से हाथ धो रहा है। बहुत कम लोग हैं, बहुत कम पिता हैं जो अपनी जिम्मेदारी को सही रीति से निभाते हैं। यहाँ पर याईर एक पिता होने की वजह से वो अपने जिम्मेदारी को सही रीति से निभा रहा था। वो अपनी पत्नी को नहीं बल्कि स्वयं यीशु के पास गया और यीशु के पास जाकर यीशु से वो विनती करता है। यीशु के सामने वो जाते ही उसके चरणों में गिरता है। देखिए, एक बड़ा आदमी, एक बड़ा व्यक्ति यीशु के चरणों में गिरता है। उस समय अगर हम देखें तो यीशु के बारे में लोगों का बहुत अलग अलग धारणाएं थी। कुछ लोग ये समझते थे कि वो चमत्कार करता है शैतान की ताकत से। कुछ लोग ये समझते हैं कि वो पापियों का दोस्त है। कुछ लोग ये समझते हैं कि वो पीने खाने वाले का दोस्त है, इसीलिए वो अच्छा व्यक्ति नहीं है। लेकिन ये व्यक्ति ने यीशु को बहुत, शायद जैसे हम देखते हैं कि उसकी जिम्मेदारी जो थी, धार्मिक जिम्मेदारी, शास्त्रों को अपने पास, अपने कस्टडी में रखना, अपने पास रखना, तो शायद हो सकता है कि शास्त्र वो पढ़ा होगा या शास्त्रों के बारे में अच्छी रीति से जानता होगा, इसीलिए वो यीशु को जान पाया। भले दुनिया उसके बारे में क्या कुछ ना कहे, दुनिया उसके यीशु के बारे में क्या कुछ ना सोचे, लेकिन ये पिता यीशु के पास वो गया। ये बहुत ही अहम बात है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यीशु के पास वो जाकर अपने आप को अर्पण किया, उसके पैरों में गिरा और वो अपने प्रार्थना को रखा। प्रियो, आज हम सभी पिता, हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे बने, हमारे बच्चे परमेश्वर के भय में रहें। कोई पिता ऐसा नहीं चाहता कि मेरा बच्चा खराब हो। हम सारे लोग ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे रहें। लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी न निभाते हुए हम ये करते हैं कि हम माँओं के ऊपर डालते हैं और चर्च के ऊपर डालते हैं, संडे स्कूल के ऊपर डालते हैं। कहते हैं कि ये लोग बढ़ा देंगे, ये लोग धार्मिक विषय में बच्चों को सिखाएंगे। ठीक है, ये सारे विषय, माँ हो गई, चर्च हो गया, संडे स्कूल हो गया, ये सारे लोग सिर्फ बच्चों को रूप दे सकते हैं। दे कैन असिस्ट योर चाइल्ड टू ग्रो इन फेथ। लेकिन बच्चे के आत्मिक विषय या बच्चा आत्मिक बातों को सीखता तभी है जब वो उसके पिता को या उसका पिता से या उसके पिता के जीवन में वो जब भी देखता है, तभी वो सीख सकता है, तभी वो उस विश्वास में बढ़ सकता है। इसीलिए मैं पिताओं से निवेदन करता हूँ, जैसे ये बच्ची शायद इसने ये देखा कि उसका पिता झुका हुआ नहीं है लोगों के सामने, बल्कि वो यीशु के सामने झुक गया। प्रियो, तुम्हारे बच्चों को जो तुम्हें दिया गया है, तुम्हारे बच्चों को तुम परमेश्वर के हवाले करने में सक्षम रहो। परमेश्वर के हाथों में उन्हें स्वयं तुम समर्पित करो। दूसरा, तुम अपने बच्चों को परमेश्वर के भय में चलना सिखाओ। बुराई और बेईमानियों से दूर रहना सिखाइए, क्योंकि ये बात
परमेश्वर स्वयं कहता है पिताओं से कि तुम्हारे बच्चों को तुम्हें सिखाना है और तुम उन्हें कलीसिया में लाना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। एस्टैब्लिश देम इन द चर्च, इट्स अ फादर्स ड्यूटी, फादर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। और तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम्हारे बच्चों को इस दुनिया के गंदगी से दूर रखने में या दूर रहने के लिए आप प्रोत्साहित करें दुनिया की गंदगी से, और उन्हें परमेश्वर के भय में, परमेश्वर के सामने चलना रहना सिखाइए और उन्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के बारे में ज्ञान दे, पवित्र आत्मा का अभिषेक के बारे में ज्ञान दे, पवित्र आत्मा का चलन के बारे में ज्ञान दे और उन्हें उनके जीवन का उद्देश्य जो परमेश्वर ने रखा है उसके बारे में आप बताएं और उन्हें प्रार्थना के बारे में, प्रार्थना का महत्व के बारे में आपको बताना है और उन्हें उनके जीवन में केवल शब्दों से नहीं बल्कि आपके स्वयं कार्य करने से आप बताएं, यानी कि आप जो बोलते हैं उसके अनुसरण आप स्वयं करें, तब बच्चा सीखता है। बच्चे को ये सिखाएं कि परमेश्वर के आज्ञाकारी अगर बने तो परमेश्वर आशीषित करता है। परमेश्वर को उन्हें ये सिखाएं कि परमेश्वर के वादों के ऊपर संपूर्ण रीति से निर्भर हो, तब परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। उन्हें ये सिखाएं कि जब तक हम परमेश्वर के भंडार में नहीं देंगे, हमारी मुट्ठी परमेश्वर के भंडार के लिए नहीं खोलेंगे, तब तक आसमानी आशीष नहीं उतरता। आज हम ये देखते हैं कि कलीसिया में बच्चों को सिखाया नहीं जाता है ऑफरिंग डालने। हम सिखाते हैं, कैसे सिखाते हैं कि 1 रुपया 2 रुपया ये डालने के तक सिखाते हैं। इसीलिए बच्चा मन खोल के डालना नहीं सीखने की वजह से जब वो बड़ा होता है तो वो परमेश्वर को देने में संकोच करता है और इसी वजह से उसकी आशीष रुकती है। परमेश्वर का आज्ञा है कि दशमांश उसके अधिकार का है, जो हमको वो देता है उसके 10वां हिस्सा परमेश्वर का। देखिए, परमेश्वर 90% नहीं मांगा, 80% नहीं मांगा, इवन 50% भी नहीं मांगा, वो 10% कहता है। 10% वो भी नहीं लेता। वो आपको सिर्फ वो ये देखता है कि आपका मन कैसा है। तो ये आप अपने बच्चों को सिखाना ज़रूरी है कि परमेश्वर के भंडार में हाथ खोलना, और बच्चों को ये सिखाइए कि माफ़ करने से ही हमें आज़ादी है, या हमें आज़ाद जीवन, खुशी का जीवन। हम दूसरों के गुनाहों को यदि माफ़ करते रहेंगे या दूसरे हमारे विरुद्ध अगर कुछ भी षड्यंत्र करते हैं, उस विषय में अगर हम उन्हें माफ़ करेंगे जो परमेश्वर कहता है, तो हमें आत्मिक आज़ादी हमें मिलती है। उन्हें ये सिखाइए कि परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने से ही परमेश्वर की अनुग्रह हमारे जीवन में प्राप्त होता है। ये सिखाइए और ये आप स्वयं करके दिखलाइए, तभी आपके बच्चे आशीषित रहेंगे। देखिए, ये व्यक्ति अपनी पत्नी को नहीं भेजा, जैसे मैंने कहा, अपने नौकरों को नहीं भेजा यीशु के पास। याईर ने स्वयं गया, अपने स्थान को भूलकर, अपना जो औदा है उसे भूलकर वो अपने आप को पूर्ण रीति से प्रभु यीशु मसीह के सामने शरणागत हुआ और नम्र से परमेश्वर के यीशु को अपने घर आने के लिए आमंत्रित किया। प्रियो, जितने पिताएं हैं जो सुन रहे मुझे, आप उसकी खोजी बनिए। You be the seekers of the living God. You be the seekers of
wisdom, strength, guidance for the sake of your family. परमेश्वर आपको, आपके हर एक विषय को देखता है, आपकी सुनता है। आप बताएं कि आप किस तरह परमेश्वर के साथ आपका कमिटमेंट है, आपका शादी का या पारिवारिक जीवन, उसके प्रति आप कितने कमिटेड हैं। यह आप आपके बच्चों को बताएं, सिखाएं, आपके जीवन से वे लोग देख सके। ऐसा करें। एक प्रचारक इस तरह कहता है कि इट्स टाइम फॉर सम मैन टू गेट ऑफ द ब्लेस्ड एस्योरेंस, यानी कि सिर्फ हम मुंह से गाते हैं जो परमेश्वर के गुणगान, उससे हटकर वे लोग पिता बनने की प्रयत्न करें, एक घर का नायक बनने की तैयारी करें, जो परमेश्वर की योजना अनुसार या परमेश्वर के वचन अनुसार है, वो बनने की हम प्रयत्न करें। केवल गुणगान गाने से, परमेश्वर की आराधना करने से नहीं चलता। परमेश्वर चाहता है कि जिस तरह हम आराधना करते हैं उसी तरह हमारे जीवनों को भी उसके वचन अनुसार हम व्यतीत करें। ये पिताओं के लिए है। आज ये बच्ची शायद, जैसे मैंने कहा, कि उसने ये देखा कि वो अपने पिता को यीशु के सामने नतमस्तक होते हुए या यीशु के चरणों में आने में कोई शर्मिंदगी उसके पिता ने महसूस नहीं किया। उसने ये देखा। दूसरा, उसने ये देखा कि उसका पिता, भले यीशु, जैसे मैंने कहा कि यीशु के बारे में लोगों का अलग अलग सोच, अलग अलग उनका विचार था, लेकिन ये बच्ची ये देखती है कि उसका पिता यीशु मसीह को अपने घर में लाने से नहीं शर्माया या नहीं डरा। प्रियो, अगर आप ये कह सकते हैं कि इसमें क्या बड़ी बात हुई यीशु का अगर वो अपने घर लाए, जैसे मैंने कहा पहले कि यीशु को लोग अलग अलग रीति से जानते थे। कोई जानता था कि वो चोरों के साथ है, या वो पियकड़ों के साथ है, या वो पापियों के साथ है, या वो व्यभिचारियों के साथ है। ऐसे लोगों की धारणाएं थी। लोग ये नहीं जानते थे कि वो पापियों को ढूंढकर उद्धार देने के लिए आया है, वो पापियों के लिए आया है। प्रियो, ये व्यक्ति निसंकोच यीशु को अपने छत के नीचे लाने के लिए वो प्रयत्न कर रहा था। देखिए, पिता का ही जिम्मेदारी है, पिता का ही जिम्मेदारी है कि अपने घर में परमेश्वर की आगमन या परमेश्वर की उपस्थिति बुलाना। क्योंकि अगर हम, मेरे साथ अगर आप पीछे पुराने नियम में अगर थोड़ा ध्यान दें, तो पुराने नियम में जो आखिरी जो कार्य परमेश्वर ने यहूदियों के या मिस्र प्रदेश में जो किया, यहूदियों को, इजरायलियों को बाहर निकालने के लिए, वो आखिरी कार्य ये था कि वहाँ जिसके घर अगर लहू का निशान नहीं होता, मेमने का लहू का निशान नहीं होता जिसके द्वार पर, उस घर में, उस घर का पहलौठा, हर, चाहे बच्चा हो या जानवर का हो, वो हर पहलौठा वो मारा जाएगा। और ये जो मेमने का लहू लगाने का काम किसका था? परमेश्वर ने बहुत ही स्पष्टता से कहा था कि ये काम केवल पिता का है। वो अपने परिवार के लिए किसी मेमने का बलि देकर मेमने का लहू अपने द्वार पर लगाएं, ताकि मरण का दूत या मृत्यु का दूत उस घर से आगे निकल जाए। अपना परिवार को संभालने के लिए, अपना परिवार की रक्षा के लिए, अपना परिवार के ऊपर संकट ना आने के लिए पिता का काम था। आज
वो बात को हमें याद रखना है, वो बात को याद रखना है। आज भी मृत्यु का दूत घूम रहा है। मृत्यु आज हमारे घर दस्तक दे रही है। हो सकता है कि शारीरिक मृत्यु ना हो, लेकिन आत्मिक मृत्यु आज कभी भी हो सकता है। टीवी के जरिए मृत्यु आ रही है, मीडिया के जरिए मृत्यु आ रही है, इंटरनेट के जरिए मृत्यु आ रही है। इस दुनिया के हर एक चकाचौंध से मृत्यु आ रही है, और अलग अलग विषयों से आत्मिक मृत्यु हमारे द्वार पर, हमारे घर में प्रवेश कर रही है। आज हमारा परिवार हर विषय का, हर चीज़ का आदी हो रही है। इसी वजह से आज हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर ना होते हुए, हमारा परिवार परमेश्वर के ऊपर निर्भर ना होते हुए इस दुनिया के हर एक चीज़ों में डूबता चला जा रहा है। आज हम परिवार में ये देखते हैं कि टूट रहा है परिवार। आज शैतान हर एक चाल चल रहा है हमें आत्मिक रीति से मारने के लिए। जो चीज़ हम कहते थे कि ये गंदा है, ये अच्छा नहीं है, आज उन चीज़ों को हम अपना रहे हैं। एक समय ऐसा था कि हम परिवार में देखते थे कि माँ, बाप, बच्चे। आज परिवार का संतुलन बिगड़ गया है। आज परिवार में 2 बाप, 1 माँ, बच्चे, या 2 माएँ, 1 बाप, बच्चे, ऐसा यानी कि रिश्ते बिगड़ रहा है, व्यभिचार घुस रहा है। इस दुनिया के वातावरण दूषित हो रहा है। हमारे बच्चे, हमारा परिवार टूट रहा है, मर रहा है। जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदारी परमेश्वर ने मनुष्य को दिया है या पिता को दिया है। हम ये देखते हैं कि ये व्यक्ति इसने अपनी बेटी के प्रति अपना प्यार, बेटी के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने में वो चूका नहीं। ये एक बड़ा व्यक्ति होने के बावजूद, याईर एक बड़ा व्यक्ति होने के बावजूद, वो अपने आप को, अपनी बेटी के लिए, अपने परिवार के लिए वो यीशु के सामने शरणागत हुआ, और यीशु जैसा कहा वैसा उसने सुना। जब उसे मालूम भी पड़ा कि उसकी बेटी नहीं रही, तो भी यीशु ने कहा विश्वास कर। तो वो यीशु के ऊपर उस एक ऐसी समय जहाँ पर मनुष्य किसी की सुनने की इच्छा नहीं रखता है, उसका सब कुछ खोने के बाद, लेकिन उसमें भी उसने यीशु की आवाज़ को अपने दिल में उतारा। यीशु ने कहा कि बच्ची मरी नहीं है, बच्ची सो रही है, बच्ची सो रही है। उसने ये माना कि हाँ, जब ये कह रहा बच्ची सो रही है तो बच्ची सो रही है। और जब जाकर देखते हैं वहाँ पर घर में, वहाँ पर उसने देखा यीशु ने उस पिता को, उसके विश्वास को सम्मान किया, और अपने साथ वो बच्ची जहाँ पर लेटी हुई थी या रखा गया था, वहाँ उस कमरे में गए। उस बच्ची के साथ, उस बच्ची के पास जाने वाले में से यीशु के चेले और याईर उसकी पत्नी। वहाँ पर ये बाप ने इस परम प्रधान परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु को जब देखा कार्य करते हुए, या इस तरह कहिए कि परम प्रधान परमेश्वर का रूप या सामर्थ ये पिता ने देखा, किस तरह ये यीशु के शब्द से यीशु कहता है कि तलिता कौम, है बच्ची उठ।
और जैसा ये शब्द यीशु के मुंह से निकलता है, देखिए वहां पर एक अद्भुत चमत्कार हम देखते हैं। गया वो प्राण वापस लौट आया, क्योंकि यीशु ही हमारा जीवन का स्रोत है। ही इज द सोर्स ऑफ आवर लाइफ। और ये जो सोर्स ऑफ आवर लाइफ हम कहते हैं, जो स्रोत है जीवन का, ये जीवन का स्रोत या वो जीवन देने वाला, वो मेहरबान कभी होता है जब अगर पिता पुकारता है, बाप पुकारता है, ठीक है, माँ पुकारती है तो भी मेहरबान होता है, लेकिन बाप के ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा दिया है। जब बाप पुकारता है, जब बाप अपने परिवार को समर्पित करता है, तब परम प्रधान परमेश्वर के कार्यों को हम देखते हैं। हम बच्चों को प्यार करना, एक पिता के हैसियत हम प्यार करने ये सोचते कि मैं अगर मेरे बच्चे को ज़्यादा कुछ ला कर दूँ, उसके मांगना, उसके हर एक मुरादें पूरी करूँ, तो मैं अपना प्यार दर्शा रहा हूँ। नहीं, आपका प्यार आप कैसे दर्शा सकते हैं कि आपका प्यार परमेश्वर के राह पर आप चलते हुए अपने बच्चों को चलाएं, तो तभी आप उस बच्चे को आपका प्यार दर्शा पाएंगे, क्योंकि आप उस बच्चे की आत्मिक स्थिति मजबूत कर रहे हैं और वो बच्चा अनंतकालीन के लिए योग्य बन रहा है, परमेश्वर के सामने रहने के लिए वो काबिल बन रहा है। ये ऐसा प्यार एक पिता देना उचित है। मुझे सुन रहे हैं आप? अगर अनंतकालीन में परिवार एक साथ रहना है, देखिए पता नहीं अनंतकालीन में किस तरह परमेश्वर कैटेगराइज करेगा, लेकिन एक बात सच है, परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए घर बना रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए मकान बना रहा हूँ। हो सकता है कि वो मकान में जैसे हम यहाँ पर परिवार है, ये परिवार वहाँ वो चाहता होगा अनंतकालीन में, हो सकता है। तो वो अनंतकालीन में चाहता है कि हम परिवार के रूप में आए, हमारा एक भी खोना नहीं चाहिए, परिवार का एक भी जन खोना नहीं चाहिए। इस परिवार को चलाने के लिए पिता को परमेश्वर ने अधिकार, जिम्मेदारी और आज्ञा दी है। प्रियो, यदि आप अब भी परमेश्वर के राह पर या परमेश्वर के मार्गों में अपने आप को संपूर्ण रीति से नहीं रखे हैं, तो आज ये दिन आपके लिए है, आपका दिन है। आप परमेश्वर की राह पर चलाइए और अपने परिवार को समेट कर रखिए। जिस घर में पिता नहीं होता, केवल एक मनुष्य या एक पुरुष होता है, वो घर नहीं रहता, वो घर स्थिर नहीं रहता, वो घर गुनाहों का अड्डा बनता है। यदि जिस घर में पिता का अस्तित्व रहता है या पिता रहता है, तो वो घर सुंदर भवन बन जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यदि पिता गुजर गया है और बाकी लोग जो पिता के बगैर है वे लोग गुनाह करते हैं, मैं ऐसे नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ जिसके घर पिता नहीं है वास्तविक रीति से, तो वो पिता संभालता है, लेकिन जिसके घर पिता है वो अपने परिवार को संभाले, अपने परिवार को चलाए। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे, खासकर हमारे कलीसिया के हर पिता को परमेश्वर बल दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे, उसकी आत्मा की अगुवाई से उसे चलाए। आइए हम प्रार्थना करें। ತಂದೆ ಅಂತ ದೇವರೇ, ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತಿ ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಈ ತಂದೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವಾಗ ದೇವರೇ, ಈ ಪ್ರಿಯವಾದವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು, ಇವರನ್ನು ಬಲಪಡಿಸು, ಇವರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಬುದ್ಧಿ, ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ನಡೆಸು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕರ್ತನೆ, ಈ ದಿನ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿರುವಾಗ ದೇವರೇ,
ನೀನೇ ಈ ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯವಾದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ನಡೆಸು. ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ತೇವೆ ತಂದೆಯೇ, ಆಮೇನ್. ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವಂಥ ಜನರ ಹೆಸರನ್ನು ಓದ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸೂಚನೆ ಏನಂತಂದರೆ, ಮುಂದಿನ ಭಾನುವಾರ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡೋಣ. ಮತ್ತು ಆರಾಧನೆ ಆದಮೇಲೆ ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ದೇವರ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಅಗತ್ಯ. ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಣಿಕೆ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನೀವು ಭಾಳ ಬೇಗನೆ ನಾವು ದೇವರ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಭವಿಷ್ಯ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ಈ ಅವಕಾಶ ಯಾವ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿರುವಂಥ ಕಾಣಿಕೆ ಡಬ್ಬೆಯನ್ನು ತಂದು ಸಭೆಗೆ ಅರ್ಪಿಸೋಣ. ಇದಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಿಂಗಳ ಕಾಣಿಕೆಗಳಾಗಲಿ ಮಂತ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟೈಪ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ನೀವು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾದರೆ ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಸ್ಟೀಫನ್ ಗೌಡರ್ ಇವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ IFSC ಕೋಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪೇ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೀವು ಸ್ಟೀಫನ್ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಸ್ಲಿಪ್ ಅಥವಾ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರು ರಿಸಿಟನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಜನರ ಹೆಸರು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 21ನೇ ತಾರೀಕು 21st ಜೆನೆಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಸೋಮ್ಸ್ ಟುಡೇ. 23rd ಫಿಯೋನಾ ಸ್ಟೀಫನ್ ಗೌಡರ್. 25th ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನ್ ಸುಪುತ್ರ ಹಿರೇಕೆರೂರ್. 26th ಸ್ನೇಹ ಮಿಲಿಂದ್ ಸಿರ್ಸಟ್. ಇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬರ್ತ್ಡೇ ಸಾಂಗನ್ನು ಹಾಡೋಣ. ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೋರಿಕೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನಾವು ರಿಚರ್ಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ, ಸುತಾರ ಆಂಟಿ ಅವರ ಮಗನಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ, ಕುರಿ ಆಂಟಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ, ಲೋಬೋ ಆಂಟಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ, ಮೇರಿ ಅರ್ಥರ್ ಆಂಟಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ, ಜಾನ್ ಇಮ್ಯಾನುವೆಲ್ ಈ ಸಹೋದರನಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ, ಜೋಯಲ್ ಬೆನ್ ಈ ಬಾಲಕನಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಮತ್ತು ಈ ದಿನ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವಂಥ ಜನರಿಗೆ ದೇವರ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸೋಣ. ಮೊದಲು ಬರ್ತ್ಡೇ ಸಾಂಗ್ ಹಾಡೋಣ. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟು ಯು, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟು ಯು, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಡಿಯರ್ ಆಲ್, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟು ಯು. ಮೇ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಆಲ್. ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನು ಭಾಗಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. हाँ, यह प्रार्थना करें. प्रार्थना के बाद हम सारे लोग परमेश्वर की आशीषों को पाएं. प्रार्थना करेंगे. है परम प्रधान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी आराधना करते हैं. पिता, आपने जैसे आप हो वैसे ही हम पिताओं को आपने रचा है और वैसे ही प्रेम हमारे परिवार के प्रति रखने के लिए आपने हमें योग्य ठहराया है. पिता परमेश्वर, तो जिस तरह हम सभी को संभालता है उस तरह हमारे कलीसिया के हर पिता, हमारे भाई, सारे लोग पिता अपने परिवार को भी उसी प्रेम उसी तरह संभाले, उसी प्रेम में बढ़ाएं और आपके राह पर चलाने के लिए आप योग्य ठहराएं. पिता, इस समय हम धन्यवाद करते हुए इन प्रियजनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं जो अपनी जन्मदिन इस सप्ताह में मना रहे हैं. प्रार्थना करते प्रभु की जेनेट जोसेफ सोन्स को, फियोना स्टीफन गौडर, फ्रैंकलिन सुपुत्र हिरेकेरूर, स्नेहा मिलिंद सिरसट, इन प्रियजनों को आशीषित करें. इनके जीवन के नए वर्ष में ये प्रवेश करते समय आप इनके साथ रहिए. जिस तरह अब तक आप रहकर इन्हें संभाला चलाया, उन्हें दे प्रभु की इस नए वर्ष में भी आपकी आसमानी आशीषों के पात्र बनकर ये रह सके और आपकी उपस्थिति आपकी प्रसन्नता हमेशा महसूस करते हुए जी सके. ऐसे अनुग्रह कर. विशेषकर फियोना के लिए प्रार्थना करते इस बच्चे को आशीषित करें. ये जैसी शारीरिक रीति से बढ़ रही है, मानसिक आत्मिक रीति से बढ़ सके, ऐसे अनुग्रह करें. पिता, इसकी पढ़ाई में, इसके हर एक कार्य में आप इसे साथ देकर चलाएं. इस बच्चे को आपके अनुग्रह में बढ़ाएं. उसी तरह प्रार्थना करते हैं प्रभु उन लोगों के लिए जो इस समय बीमार अवस्था में है, कमज़ोर स्थिति में है. पिता, इन प्रियजनों को आप छूकर चंगाई प्रदान करें. पिता परमेश्वर, इन प्रियजनों में प्रार्थना करते हैं कि रिचर्ड को आपका स्पर्श होने दे. पिता, उसे सामर्थ्य प्रदान करें. उसे सुतारा आंटी, उनका बेटे लॉरेंस के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें बल दें, उन्हें सामर्थ्य दें, उन्हें चंगाई प्रदान करें. पिता, उसी तरह कुरी आंटी के लिए, लोबो आंटी के लिए, अर्थर आंटी के लिए, भाई मैनुअल के लिए प्रार्थना करते हैं और लूसी आंटी आशापुरे, उनके लिए प्रार्थना करते हैं. पिता, इन सारे लोगों को आपकी स्पर्श होने दें. आपकी गर्माहट का हाथ इनके जीवनों पर आप रखें ताकि पूर्ण रीति से चंगाई ये लोग पा सकें. उसी तरह
प्रार्थना करते हैं जोएल के लिए। पिता इस बच्चे को आप छूकर संपूर्ण रीति से चंगाई प्रदान करें। इसके दिल में जो छेद है पिता, उस छेद को मिटाए और इसे एक अच्छा जीवन बिताने के लिए आप आशीषित करें। उसी तरह प्रार्थना करते हैं प्रभु कि इस महामारी को आप जल्द से जल्द हमारे सृष्टि से, इस धरती से, आपकी इस सुंदर सृष्टि से हटा दें। और पिता हम सारे लोग फिर एक बार आपके भवन में उपस्थित हो सके, आपकी आराधना आपके भवन में मिलकर कर सके, ऐसा हमें भाग्य प्रदान करें। फिर एक बार पिता हम सारे लोगों को और इस आराधना में भाग लिए हुए हर एक व्यक्ति को आशीषित करें। जो दान आपके बच्चों ने आपके कार्यों के लिए दी है पिता, इन दानों इस दान को आप स्वीकार करें और इसे आशीषित कराएं, बढ़ाएं और आपके राज्य के विस्तार के लिए उपयोग करें। और पिता आपके लोगों को आप सुरक्षित रखें। धन्यवाद करते हुए सारा मान महिमा गौरव आप ही को देते हुए प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र मधुर नाम में मांगते करके सुन और दया से कबूल कर पिता, ಆಮೇನ್। ಈಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹ ಸಹವಾಸ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಎಂದಿಗೂ ನೆಲೆಯಾಗಿರಲಿ, ಆಮೇನ್। ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ। ಮುಂದಿನ ವಾರ ನಾವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತಿ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ, ಆಮೇನ್।